नमस्ते। हम लोग अ, एक बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च, 1923 की, 102 साल पुरानी बिल्डिंग। यहीं पे अपना कार्यक्रम हुआ और आशुतोष जी मेरे साथ हैं। आशुतोष जी, एक तो अच्छी बात यह है कि इन लोग कितना प्रिजर्व करके अपनी बिल्डिंग को रखते हैं। कहने को चर्च है, लेकिन पूरा कॉन्फ्रेंस रूम, हाँ। खाना पीना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप क्या खाएं, क्या पिएं, क्या लाएं, क्या ना लाएं। एक ही बस रिस्ट्रिक्शन था जो मैं आपसे पूछा, सफाई करके जाना है। जो गंदगी आप फैलाएंगे अपनी, वो गंदगी आप अपनी खुद उठा के हाँ, साफ करके जाएंगे। उसके बारे में बहुत ही फिनिकी हैं। हाँ। अ, हम लोग डांट कुछ लोग हमारे साथ के खा चुके हैं। तो बहुत जल्दी से पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 दिन का? नहीं, हमारे ख्याल से बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। और बल्कि मैं ये कहूँ कि वंस इन अ लाइफ टाइम अनुभव है कि जब आप अपने देश से बहुत दूर एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर आप अपने देश के बारे में चिंता करते हैं, अपने समाज के बारे में चिंता करते हैं और ये देखते हैं कि आगे की रोशनी क्या हो सकती है, आप क्या आगे निकल सकते हैं, रास्ते क्या हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ जितने लोगों से हम लोग मिले, उनका बहुत शानदार, जिसे कहते हैं ना कि जिस तरीके से उन्होंने अगवानी की, जिस तरीके से उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश की, वो बिल्कुल आई ओपनर था, जी। बिल्कुल अपने आप में। और वो भी गांधी और नेहरू के नाम पे। आप सोचिए, गांधी, नेहरू और मार्टिन लूथर किंग पर हम जी। बात कर रहे थे। और तो अद्भुत था, बहुत अच्छा था। जी, और बस एक आखिरी बात ये कह के, हम सब लोगों की एक ही चिंता है कि इन लोगों का प्रेम और इन लोगों का जो अफेक्शन दिया है वो वापस नहीं कर सकते। इट इज समथिंग विच इज, ये शायद वापस हम लोग कभी ना कर पाए। और ये शायद अगली बार हम लोग जीवन में शायद कभी मिले भी ना, हाँ, लेकिन लोग आए, सुने। और बस यही है कि गांधी और नेहरू के सामने तो अपना सीना भी चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अपना सीना भी चौड़ा। थैंक सो मच। Panel 2 now, which is the second panel. And the topic of this particular panel is also very, very interesting. And this is something which is part of the general narrative, which we keep discussing off and on. But we really never get to the bottom of these issues. And these are secularism, scientific temper, and of course, the Nehruvian development model. Uh, in India, you know, secularism has become the bad word. Uh, Anybody who talks about secularism is supposed to be not in the right frame of mind, if I may say. So that is one thing. When you talk about the scientific temper, you have a prime minister who says कि हम नाले से गैस निकाल लेंगे, बादलों के जो रेडार है उसमें से कुछ छिप जाता है, वहां से जहाज निकलता है. You have a prime minister who denounces the scientific temper, and which is why there are bigger problems for people like us who all the time want to encourage the scientific temper, who all the time want to talk about secularism. So these again are the challenges, and we keep talking about these issues, but as usual, we don't get heard. So the best is to talk in DC with eminent panelists who will be talking about this. And of course, like these two words, if you particularly talk about secularism and scientific word, it seems that they are just as vocabularies existing on the social media and the literati circles. But how much does it get applied in the actual life, on the real ground? That is also a very big question. What is secularism? The definition may differ from people to people. For you, secularism may be something else. For me, secularism might be something else. And for Prime Minister Modi and Donald Trump, the secularism would be something else. So this is where we are, and the things have reached that stage. So I'll call upon the panelists for this particular session. We have Professor Shuvendu, who's a professor of information systems at the University of South Florida. I was talking to him, so he was saying, Professor Shuvendu is there? Yeah. Oh yeah, so sorry. So he has an engineering background, and then he's now working on the information systems at the University of South Florida. So we look forward to listening him. He's developing a lot of models, he was telling us, so we'd like to hear him on that as well. Thank you so much for joining. We have Hemant Atri, who's a senior journalist, political commentator, and he's also been the information commissioner to the government of Haryana. Hemant ji, thank you so much for joining. We have Shell Bala Martin, whom we missed out in the morning, but I must tell you, she has been a decorated IS officer working for the Madhya Pradesh government. She is supposed to be a very vocal person. What happens normally is that when the bureaucrats are in service,
So the protocol and the conduct doesn't allow them to speak, but Shail Balaji has been one of those officers who've been speaking on social issues. She's been very vocal on the social media. She got trolled also big time. She writes blogs, she writes articles. So we also hope to hear from her. Thank you so much, ma'am, for joining. And someone who's moderating this session is equally eminent this afternoon. Bushra Khanum joins us. She's a renowned face on the digital media. She's also been part of the mainstream media. She's associated as a consulting editor with DB Live, and as she herself described, it's attained a height which is like unthinkable, 10 million subscriber base. That's what she represents. Thank you so much, Bushra, and over to you now. The floor is yours. Thank you. Adab, namaskar, and very good afternoon. It gives me immense pleasure to welcome you all to this very important session on secularism, scientific temper, and Nehruvian development model. It is my privilege to be a part of this remarkable conference and to be addressing such an august gathering here at Washington, D.C., a very first for me here in United States. It is always such a wonderful feeling to see fellow Indians in a foreign land. I once again welcome you all. And, when we talk about these three ideas are not just historical concepts, but living principles that continue to shape India's democratic, social, and developmental journey. I will begin with secularism. These topics, I would say, have never been as relevant as in today's India, new India, we say. For Nehru and the founders of modern India, secularism meant equal respect for all the religions, the protection of minorities, and ensuring that faith does not dictate state policy. This was essential in a society as diverse as ours. It was Nehru's belief that secularism was the only way to hold together India's vast canvas of diverse communities, faith, and cultures. Why secularism and the concept of secular India was so important for Nehru? क्योंकि नेहरू ने उसे अपनी जिंदगी में जिया था. He had lived that experience and he knew that without secularism, the idea of India cannot survive. तमाम communities, तमाम religion को साथ लिए बगैर हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं किया जा सकता है. नेहरू फ्रीडम स्ट्रगल के प्रोडक्ट थे. बचपन से ही उन्हें तमाम मजहबों के बारे में एक्सपोजर हासिल हुआ. उनको घर पर पढ़ाने वाले जो उनके टीचर थे वो मिस्टर ब्रूक्स थे. अक्सर उनका इंटरेक्शन एनी बेसेंट से हुआ करता था और उन्होंने अपने पिता के जो मुंशी थे मुबारक अली से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. This exposure at the initial level removed many religious dogmas from his mind. Later in his life, as a freedom fighter, as Prime Minister, Maulana Azad was his closest intellectual companion. Rafi Ahmad Kidwai, his political advisor. Zakir Hussain and Sayyid Mahmood, his partner in education and governance. And Abul Kalam and Khan Abdul Ghaffar Khan, his brotherly comrade in the larger struggle for unity and non-violence. इसके अलावा भी पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीडर्स थे जैसे अली ब्रदर्स, मुख्तार अंसारी, मोहम्मद अली जौहर, हाकिम अजमल, महमूद हसन देवबंदी वगैरह के जो थे उनके दौर के हिंदुस्तान में इन तमाम लोगों के रोल्स को उन्होंने करीब से देखा और इन सब एक्सपोजर और एक्सपीरियंसेस ने उनके जहन को मुतासिर किया था. So we can easily conclude that Nehru had ingrained the concept of secularism in his own life with all that he experienced. And now we come to New India. And now we see last 12 years what is happening in India. Now state has a religion and they tell you every now and then. और वो आपको हर वक्त ये बताते हैं कि स्टेट का एक रिलीजन है और बाकी जो रिलीजन है उससे कैसे उनको इस पर ज्यादा महारत हासिल है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि
जिस तरह से जिस इंडिया में, जिस न्यू इंडिया में हम जी रहे हैं, या जो मुसलमानों की या फिर दूसरी माइनॉरिटीज की जो हालत है वो किससे छिपी नहीं है. Hate has become so mainstream that our Prime Minister in his Independence Day speech वो खुले तौर पर उस दिन को भी इस्तेमाल करते हैं कि कैसे वो एक मजहब के खिलाफ नफरत फैलाएं. अब ये पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट में भी आप ये देखें कि किस तरह से वहां पर भी हेट को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है. लगातार हम ये देख रहे हैं कि चाहे हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, हम चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें, मुझे लगता है अब किसी तरह का कोई दिखावा बिल्कुल नहीं रह गया है. जो है वो बिल्कुल सामने है, वो आपको बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं. मुझे लगता है मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर कोट करने के लिए, बट मैं अपने पैनलिस्ट जो हैं उनके लिए छोड़ देती हूँ ताकि वो उन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर सामने रख पाएं. मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी साइंटिफिक टेम्पर की. Jawaharlal Nehru saw scientific temper as essential for India's progress and modernization. He believed that rational thinking, inquiry, and evidence-based decision-making were the best way to overcome superstition, poverty, and backwardness. To promote this spirit, he established institutions like IITs, IIMs, CSIR, and Atomic Energy Commission. Nehru famously said, "It is science alone that can solve the problem of hunger, poverty, and illiteracy." For him, scientific temper was not just about science. It was a mindset to question, reason, and build a modern India. और अभी हम क्या देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एज नीलू राइटली सेड हियर. अनुराग ठाकुर जो कि अपने अलग तरह के बयानों के लिए मशहूर है, वो अभी स्कूल में गए थे तो उन्होंने जाकर वहां पर कहा कि हनुमान जी जो थे वो पहले थे जो स्पेस गए थे, या नाले से गैस निकालने की जब हम बात करते हैं, या बाबाओं को जिस तरह से मेन स्टेज दिया जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री एक बाबा का हाथ पकड़कर जाते हैं और कहते हैं कि वो उनके छोटे भाई की तरह हैं. तो जो नेहरू ने सब कुछ बिल्ड किया था और जो हमने 12 सालों में खोया है वो सब हमारे सामने है. और ये देखकर वाकई में सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कैसे कहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी और कहाँ आकर अब हम खड़े हो गए हैं. जब हम नेहरू के डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू's डेवलपमेंट मॉडल फोकस्ड ऑन स्टेप-लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता. Through the 5-year plans, he prioritized heavy industries, dams, steel plants, and public sector enterprise, calling dams the temple of modern India. He believed the economic development must go hand in hand with social justice, ensuring education, healthcare, and opportunities for all. Nehru also founded primary institutions like IITs and IIMs to build a skilled workforce. His model led the institutional and industrial foundations of modern India. So I think I've given a brief about these 3 topics, and now I will begin with my panelists. I have Professor Shivendu, Hemant Attri, and Shail Balaji with me. And I would begin with Professor Shivendu. Professor Shivendu, Nehru believed secularism was the glue to hold together India's diversity, while the Modi government seems to place Hindu identity at the center of national identity. How do you assess these ideological shift, and what does it mean for the future of Indian democracy? Thank you very much, Bushra. I think it's a loaded question. I have a different view about secularism and Nehru. While almost everybody believes that India adopted a secular policy because that was the need of the hour. That means it was done so that we can hold the country together. I believe that it was done because Nehru actually believed in it.
He didn't do it because he thought that if I don't do it, the country will break. He believed that if I do it, I believe in it, and it will also hold the country together. I think this is, in my opinion, I mean, I have worked in India for many years as I studied in India. I went to IIT Kanpur, did my electrical engineering, went to IIM Ahmedabad, did my management, worked in the IAS for almost 20 years, came here, did my PhD, switched my career, became an academic. I do research in information systems, business models. Of late, I have also started a technology startup on. So what I'm trying to say is that because of all these experiences, I do get to interact with multitude of people, different opinions, different perspectives, different experiences, and what we think about what needs to be done depends on those experiences. And I think for Nehru, secularism was something that he really believed in, that originated from his earlier experiences, as you were mentioning. When he was growing up, he interacted with people of different faith, and he really believed that once human beings, faith is just a personal belief, and it does not play a role in external governance related issues. And I think there are multiple examples of countries which adopted that kind of a policy. And I do believe that it was also the need of the hour. I'm not saying that it was not need of the hour. I'm just saying that probably in my thinking, he did it because he believed in it. And that also happened to be the correct way to keep the country together. Now, when I looked at these three things, which is secularism, scientific temper, and development model of Nehru, they all like look disconnected. But I think as I was thinking, I could see that there is a underlying connection between all these three. Secularism for him was the way to separate the faith from day-to-day life, including political life. For him, political life or politics was core to the growth and development of the country. And he believed that, this is again my way of understanding him and Gandhi, that Gandhi was very different in my, again, whatever little I understand, in terms of using religion for a political purpose. I think Nehru believed that religion has no role in politics. Politics is purely related to development, growth, economic prosperity. And there he thought that scientific temper is the requirement to bring that revolution or to change that. When we talk about scientific temper is about questioning, while faith is about believing. And he could see very clearly that in order for country to progress, we have to have that questioning mind, and only that will lead to change in the society, that will lead in the change in the politics, that will lead to change in the way people relate to each other and the way they envision the common goal as a country that we want to achieve. Now, his biggest contribution to me, to be honest, though I went to NIIT, and I do not understand that that was a big contribution, but I think his core contribution to India was the institutions that he built. Democracy is not about voting. Democracy starts with voting, but it's like you start the class by introducing the subject, but then you have to go a long way to communicate that subject or to teach that subject to students. Democracy, voting, all that is
an integral starting point. But after that comes the institution. After that comes the rule of law, which is the foundation of democracy. He built those institutions, right from creating those administrative institutions to institutions which will be responsible for policy making, institutions that will be responsible for creating accountability to government. All those institutions were one of the biggest and most enduring contributions to what India is today. Within that, as he was creating those institutions, he was also trying to bring that scientific temper in way the public policy is administered and developed in India. And there came the development model. Nehru's development model, to my understanding, was based on development at the grassroots level. At that time, when India became independent in 1947, there was a revenue structure in the government in terms of tehsils, in terms of revenue collection, because the government's job by that time was not really developing people, developing the human resources, or developing the poorest of the poor. Poorest of the poor were not the focal point. And I think there Nehru was influenced by Gandhi's thinking that when you see a solution, see how that solution will impact the last person in the room or in the society. And that was Nehru's development model. And that's how he started this whole block development offices were created, the community development schemes were created. From the grassroots, there was absolutely nothing in those days, any administrative structure. He built that development model, which actually starts with creating opportunities and growing people and infrastructure and facilities at places where they are most needed, but they are not visible. They are not visible from Delhi, they are not visible from big cities, they are not visible from people who are having those opportunities. So his development model was based on creating these opportunities through these development efforts for each and every citizen of the country. That was, to me, his vision. Obviously, he didn't get that much time to implement that vision and make that happen, because he was prime minister only for a very short period of time. 12 years is not a very long period in the history of a country. So to me, the point that I will make, that all these three things are interlinked. All these three things are essential for country to move forward. What is happening today is happening because I think we can blame politicians, we can blame a particular party, but at the end of the day, we have to also own them, diffuse that ownership to a larger population, because there are a large number of people who are not questioning, who are not, and why it's happening, I am not, I think, sufficiently experienced in talking to a lot of people to understand why they don't question, what is compelling them in believing and not questioning, which is again leaving that basic tenet of scientific temper, which is based on questioning, and why they are not eager to change the system which will do good to them individually, rather than being told that this is all is good. But I'm sure that people can see what things are.
I mean, we don't have to tell them what things are. So there is, and I'm looking forward to discussions as we talk going in this panel, and this conference has been great. Thank you very much, Anandji, for and Dinesh for bringing us all together. So thank you, and I look forward to your questions and your comments. Thank you. शैल वाला जी को मैं डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहूंगी और मेरा आपसे सवाल ये है कि we have seen growing instances where mythology is projected as science, rationalist voices are attacked, and scientific institutions face political interference. Would you say that these reflects a complete erosion of scientific temper in governance under the current regime? And what danger does that pose to a democracy like India? And we have a lot of examples. You come from Madhya Pradesh, और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा इसके बारे में कोई और बात कर नहीं सकता है. आपको you have lived experiences जो आप यहाँ पर शेयर कर पाएंगी. So please. Thank you so much, Bushra ji. रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग की इस धरती पर आकर उनको स्मरण करते हुए, महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी के रूप में उनको याद करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करती हूँ. आप सभी को मेरा नमस्कार. वैसे तो बुशरा जी ने मुझे साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन जहाँ प्रोफेसर शिवेंदु जी ने सेक्युलरिज्म की बात की, जहाँ उन्होंने हमारे सेक्युलर भारत की बात की, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं आपको एक पाकिस्तानी शायर थे रईस अमरोहवी, उन्होंने नेहरू जी के बारे में जो 4 लाइनें लिखी थी, जो कसीदा उन्होंने एक लिखा था, उससे अपनी बात को आरंभ करना चाहूंगी. अमरोहवी जी ने नेहरू जी के बारे में लिखा था, जप रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, जप रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, ब्राह्मण जादे में शान दिलबरी ऐसी हो, हिकमते पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, मर मिटे इस्लाम जिस पर काफिरी ऐसी तो हो. ये उन्होंने उनकी शान में कसीदा तब लिखा था जब आजादी के बाद नेहरू जी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, और सऊदी अरब के जो शाह थे वे उनके सेक्युलरिज्म से प्रभावित थे. तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने नेहरू जी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रसूल अस्सलाम. रसूल अस्सलाम शब्द जो है पैगंबर मोहम्मद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका अर्थ होता है शांति का संदेश वाहक. जब नेहरू जी के लिए शब्द का इस्तेमाल सऊदी अरब ने किया तो पाकिस्तान में बहुत खलबली मची. नया नया पाकिस्तान मुल्क हमसे अलग हुआ था और पाकिस्तानियों ने इसको लेकर एक बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन अपना दर्ज किया, बहुत विरोध हुआ. तब अमरोहवी जी ने नेहरू जी की शान में इस कसीदे को लिखा था. तो नेहरू जी का सेक्युलरिज्म ऐसा था जिससे कि ना केवल हमारे देशवासी अपितु विदेशी भी उससे प्रभावित थे. जैसा कि प्रोफेसर शिवेंदु ने कहा कि क्योंकि नेहरू जी बिलीव करते थे सेक्युलरिज्म में, उन्होंने उसको जिया था और इसलिए उन्होंने भारत को एक सेक्युलर देश बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाए. तो यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि उस समय जब हमारा देश बिल्कुल आजाद ही हुआ था, और आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद जो विभाजन देश का हुआ, जो दंश विभाजन का देश ने झेला और सांप्रदायिकता ने उसमें एक तड़का सा लगा दिया था, उसने भी शायद नेहरू जी को मुझे लगता है मजबूर किया होगा कि वो इस देश को सेक्युलरिज्म की राह पर लेकर चले, और उन्होंने एक सेक्युलर राष्ट्र की नींव रखने का सोचा. लेकिन आज के उसमें जब हम परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा कि अगर एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए बुशरा जी का अनुरोध था प्रोफेसर साहब से, तो हालांकि मैं कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करती हूँ, लेकिन आज जब हमारे त्योहार आते हैं
तो हम लोग जुलूस जल्द से निकालते हैं, एक विशेष धर्म के धार्मिक स्थलों के सामने जाकर नारे लगाते हैं, वहां गंदे गंदे शब्दों के भजन गाते हैं। यहाँ आकर हमने अपने सेक्युलरिज्म को ठहरा दिया। या फिर जबकि हम एक दूसरे के प्रति या अपने पड़ोसियों के प्रति भी धार्मिक निगाह से एक दृष्टिकोण रखने लगे हैं, तो इसने नेहरू जी के सेक्युलरिज्म को एक धक्का तो पहुंचा ही दिया है। अब हम नहीं जानते हैं कि ये जो हमारे समाज में धीरे धीरे करके पिछले कुछ ही समय में ये बिल्कुल अंदर तक बैठ गई ये चीजें, ये कब ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी। लेकिन मुझे जरूर विश्वास है कि आज जब हम लोग यहाँ पर एक भले ही कम तादाद में बैठकर इन विषयों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन जो भी विचार विमर्श हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये धीरे धीरे दूर तक जाएंगे और इनका एक गंभीर प्रभाव आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस छोटे से जो आज एक पौधा हम लोगों ने यहाँ पे रोपा है, ये आगे जाके हमारे देश के माहौल को सही करने में एक अपना योगदान प्रदान करेगा। नेहरू जी का हमेशा से मानना था कि यदि किसी समाज को आगे बढ़ना है तो उसको अपने टेम्परामेंट को बदलना होगा, उसको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। वे चाहते थे कि हमारे देश का हर नागरिक एक वैज्ञानिक सोच अपने अंदर पैदा करे और उसी सोच को लेकर वो आगे बढ़े, तभी हमारा देश तरक्की करेगा और हम लोग अपने रूढ़ियों से निकलकर वैज्ञानिक दृष्टि से अपने जीवन को जी सकेंगे। इसी के लिए उन्होंने देश में शिक्षा और साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देना आरंभ किया था। नेहरू जी जानते थे कि जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे तरक्की कर पाएगा। नेहरू जी ने, जो कि शुरू से पढ़े लिखे थे, साइंटिफिक सोच रखते थे, और अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने अपनी इस सोच को आजादी के पहले ही रिफ्लेक्ट कर दिया था। 1946 में उनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और जेल के दिनों में उन्होंने इसमें साइंटिफिक सोच के बारे में काफी विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे थे। आजादी के बाद जब उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली, उस समय उन्होंने जोर दिया कि हम IITs बनाएं, एम्स बनाएं, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करें और हमारे देश के बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद हो, वो पढ़ लिख कर एक ऐसे क्षेत्रों में अपना कदम रखें जो कि हमारे देश को आगे ले जाने में सहायक हो सके। और यही जो पढ़ाई लिखाई थी, यही जो साइंटिफिक अप्रोच थी, उनका ऐसा मानना था कि हमारे देश को अपनी रूढ़ियों से और सांप्रदायिकता से भी बाहर निकाल सकेगी। उन्होंने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी बल दिया। इस प्रकार से वैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हमारे देश को एक नया रास्ता दिखाया। नेहरू जी चाहते थे कि हमारे देश का हर नागरिक अपने वैज्ञानिक चेतना को अपने जड़ों में जमाए। और अब उन्होंने, जब देश आजाद हुआ उस समय आप जानते होंगे कि देश में CSIR की मात्र 2 अनुसंधानशालाएं थी। वे चाहते थे कि अगर देश को तरक्की की राह पर ले जाना है तो हमको अनुसंधान के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने होंगे। इसीलिए नेहरू जी ने CSIR की मात्र 2 प्रयोगशालाओं को बढ़ाकर, मात्र 2 अनुसंधानशालाओं को बढ़ाकर आगे और नई अनुसंधानशालाओं को बढ़ावा दिया, खोला। और आप सबके ध्यान में ये भी होगा कि जब CSIR ने ही एक मॉलिक्यूल को खोजा था जिसका कोवैक्सीन में उपयोग किया गया, जो कि कोविड के इलाज में बहुत कारगर साबित हुआ। ये नेहरू जी के द्वारा हमारे देश को दी गई एक दिशा थी, जिसने ऐसे समय में जबकि दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी और कोई उसका हल संभव नहीं आ रहा था, वैसे समय में उन्हीं की आधारशिला रखी गई संस्थाओं ने उसके इलाज में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये नेहरू जी ही थे जिनकी सोच के कारण पहली साइंटिफिक रिजोल्यूशन जो पहला था 1958 में हमारी संसद में पेश किया गया। साइंटिफिक रिजोल्यूशन पॉलिसी को खुद नेहरू जी ने पेश किया था
और संसद में उन्होंने उस प्रस्ताव को पूरा पढ़ा था। संभवतः ये हमारे देश के इतिहास में पहला कोई रिजोल्यूशन था जिसे कि पूरा पढ़ा गया। आमतौर पर टेबल कर दिया जाता है रिजोल्यूशंस को, पर यह प्रस्ताव पूरा था। और आप आश्चर्य करेंगे जानकर कि उस समय के विपक्ष ने ये कहा था, हालांकि विपक्ष बहुत उस समय अल्प संख्या में ही अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, लेकिन जो संसद में नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि आपने इस रिजोल्यूशन को और पहले क्यों नहीं पेश किया, शायद हमारे देश को इससे और एक नई राह मिलती। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज के भारत में हम इस तरीके का कोई रिजोल्यूशन लाने की बात कर सकते हैं? ये रिजोल्यूशन ही आगे जाके हमारे देश की वैज्ञानिक तरक्की का एक जरिया बना। और आगे जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी सोच का परिणाम था कि हमारे देश को एक इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिल सका। तो नेहरू जी का जो सोच था विज्ञान की राह पर आगे चलने का, इसने देश को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन आज आप देखिए हमारी वैज्ञानिक सोच कहाँ आके रुक गई है कि हमारे एक जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि गोबर से स्नान करने से कोविड का इलाज हो जाता है, या जैसे कि बुशरा जी ने बताया कि हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताया गया, या हमारे यहाँ एक बाबा जी कहते हैं कि मुझे घटनाओं की पहले से जानकारी थी, एयर इंडिया क्रैश की पहले से जानकारी थी, लेकिन अगर मैं बता देता तो कुछ ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो आज देखिए हम लोगों ने अपने देश को एक आगे बढ़े हुए वैज्ञानिक सोच से कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या हम इस सोच को आगे बदल पाएंगे? क्या हम इस सोच के साथ आगे जा पाएंगे, या हम चाहेंगे कि हम अपने देश को वापस एक वैज्ञानिक सोच, एक वैज्ञानिक दिशा दे सकें? ये आज हमारे सामने बड़ा प्रश्न है। और हो सकता है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग अपने देश को वापस एक उन्नत दिशा की तरफ ले जाने के लिए कदम बढ़ा सकें। यही मेरी अपेक्षा है। आगे की बात हम अगले अपने दौर में करेंगे। थैंक यू शैलबाला जी। मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जब हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं तो कैसे पूरी पॉपुलेशन को किताबों से, रीजनिंग से, इस सब से दूर किया जा रहा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उलझा कर रखा जा रहा है ताकि आप वो सवाल ना कर सकें सरकार से, आप उस तरह की रीजनिंग ना कर सकें, उस तरह की क्वेश्चनिंग ना कर सकें। उन तमाम चीजों से उलझाकर आपको एक ऐसी उन्मादी भीड़ में तब्दील किया जा रहा है जो किसी भी रिलीजियस जो प्लेसेस है वहां पर जाकर नाचती है, उसको लगता है यही तरीका है अपने जो त्योहार है उनको मनाने का। और कैसे जब वो सवाल करते हैं तो उन सवालों को कैसे एंटी नेशनल का होने का तमगा लगाकर उनको कैसे क्या उनके साथ किया जाता है, वो सब हमारे सामने है और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर शैलबाला जी ने उसको एक्सप्लेन भी किया है। अब मैं बात करना चाहूंगी नेहरू के डेवलपमेंट मॉडल की और हेमंत अत्री जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी और उनसे मेरा एक सवाल भी है कि नेहरू built institutions to make India self-sufficient, but today we are watching those institutions being sold off or dismantled. Is this just economic reform or does it represent an ideological rejection of Nehru's developmental state? And what dangers does that pose for a country as diverse and unequal as India? Hemant ji. धन्यवाद बुशरा जी, धन्यवाद आनंद जी, आप सभी साथियों का, सुबुद्धि श्रोतागणों का, साथी पैनलिस्टों का, आप सभी का साधुवाद है आपको कि अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे देश में, वाशिंगटन डीसी जैसे शहर में वर्किंग डे पे आपने अपना कीमती समय निकाला। इसके लिए वास्तव में हम साधुवाद के आप सब पात्र हैं, मैं आभारी हूं व्यक्तिगत तौर पर। बुशरा जी ने जैसे कहा कि किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह का क्या है, तो हम देखिए कोई वक्ता तो सर है नहीं, कोई बुरा ना माने, जो भी आए वो अपने ठीक बॉल बैट पे आ गई तो छक्का, नहीं तो कोई बात नहीं, उस टाइप के लोग हैं, तो कृपया उसको निठाने लें। तो उन्होंने पहला ही सवाल ऐसा पूछ दिया कि उसमें पंच है, अब मैं क्या करूं, मेरी आदत है। तो उन्होंने कह दिया कि कौन सा, जो नेहरू जी ने जो कहा था कि सेक्युलरिज्म,
सेक्युलरिज्म का जो मैं सब शब्द आप लोगों ने हमें पढ़ाया, हम तो छोटे हैं आपसे, आपने धर्मनिरपेक्षता पढ़ाया हमें, तो वो धर्मनिरपेक्षता था, आजकल शर्मनिरपेक्षता चल रही है। धर्मनिरपेक्षता को शर्मनिरपेक्षता में आने में ज्यादा समय नहीं लगा, 11.5 साल। एक, क्योंकि इन सवाल ऐसा पूछ ले, मेरी मजबूरी है, देखिए साहब गंभीर नहीं हो सकता। फिर इन्होंने कहा साहब कि जो दूसरा इनका जो मुद्दा था बड़ा गंभीर, वो भी है। ये कह रही है साइंटिफिक टेम्पर, बताइए क्या करेंगे? मतलब साइंटिफिक टेम्पर, कहा नेहरू थे, कहा हम नाले में से गैस निकाल देते हैं। पहले सबसे बड़ी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी किसकी हुई थी, ध्यान है आपको? अपने गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी का पहला प्रोडक्ट, समझ लीजिए आप। और तीसरा इन्होंने एक और भी अद्भुत बात कही, नेहरूवियन मॉडल। बताइए भाई, मॉडल ही नेहरूवियन बचा है देश में, आप लोग समझ नहीं रहे। नेहरू को गाली दो और बाकी काम ठीक है। यू हैव मेड हिम ए पंचिंग बैग विदाउट डूइंग एनीथिंग, without knowing everything, without even intending to know anything. क्यों? कि यहां से खाली है, स्विच ऑफ है, बाकी सब ठीक है। बताइए आप, मैं तो हरियाणवी आदमी था कि मुझे कोई बुद्धि की बात बहुत ज्यादा नहीं समझ पाती, माफ कीजिएगा। लेकिन जो कुछ ये हो रहा है और जो कुछ आप लोगों ने हमें पढ़ाया है, प्रोफेसर दुबे बैठे हैं और सारे वरिष्ठ बैठे हैं, हमें जो पढ़ाया था, जो हमने सीखा था, जो इतिहास छोटा मोटा पढ़ पाए, जल्दबाजी में जितना पढ़ पाए, वो अपने आप में ना कुछ गंभीर सवाल है साहब। और बहुत ही ब्रीफ में धर्मनिरपेक्षता का मैंने जैसे बताया, नेहरू और गांधी का जो इस तरीके का वो था। जब भी हम धर्मनिरपेक्षता शब्द सुनते हैं कभी भी, तो हमें लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सरकार और धर्म के बीच में एक बहुत मजबूत दीवार हो, कि ये सरकार है और ये धर्म है। लेकिन भारत की जो कहानी एकदम अलग है, और आज से नहीं है, आज से 2800, 2500, 2400 साल पुरानी। बहुत ब्रीफ में जाऊंगा अगर आप इजाजत देंगे तो। बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता की कहानी है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हर धर्म को समान रूप से अपनाना है, और 7 दशकों से अधिक समय तक राजनीति ने इसको करके दिखाया, लगातार इसको जी के दिखाया। और जी के क्यों दिखाया? क्योंकि सबको एक समझ थी कि भारत की जो विविधता है वो पूरी दुनिया को जीने का एक बहुत दूसरा रास्ता दिखा सकती है, और वही इस साहसी प्रयोग का एक सबसे बड़ा कारण बने। आप स्वीकार करेंगे इस बात को कि दुनिया के नंबर 2 आबादी के हम देश है, और उसके बावजूद कब से हमारे यहां देखिए, अशोक महान ने कब क्या कर दिया था? आज से 300 BC, आज से 2400 साल पहले उन्होंने क्या कहा था कि सब धर्मों का सम्मान कीजिए, सारा ये कीजिए। उसके बाद अगर आप चलेंगे आगे, तो सम्राट अशोक की जो बात आपने की, उसके बाद जो थे मुगल सम्राट थे अकबर, उन्होंने जो चीज की, इबादत खाना खोला कि कोई भी धर्म का आदमी आए, एक जगह पर अपनी पूजा पाठ करे, कोई समस्या नहीं। आजकल मैं तो सड़क पे चाहूं तो नारे लगाऊं, मजबूत करूं, बुलंद करूं, विश्व गुरु बनूं, और आप अगर 2 बाई 2 फुट में अगर आप पूजा करें तो आपका इलाज कर देंगे। तो इलाज करने वाले डॉक्टर इतने यहाँ पैदा हो गए हमारे यहाँ, उनकी कोई डिग्री नहीं है, माफ कीजिएगा, कुछ भी नहीं है। वो एक जैसा जिक्र किया बुझरा जी ने, थोड़ा हल्का सा टच किया कि भीड़, उन्मादी भीड़, वो जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ द डे। और उसने जो किया है हमारे यहाँ कि एक तरफ तो अकबर वाहन जैसे लोग थे, और एक तरफ ये इस तरह के लोग थे। बेसिकली धर्म का मतलब क्या है? जैसा पिछले पैनल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अपने आप को रीइन्वेंट करना, अपने आप को एक उस दिशा तक ले जाना, उस लेवल तक ले जाना, जो गांधी जी का जिस तरीके जिक्र किया कि आश्रम के एक तरफ शमशान था, दूसरी तरफ जेल थी। वो अद्भुत है अपने आप में। वो एक्सप्लेनेशन भी मैंने इससे पहले सुनी नहीं, माफ कीजिएगा, बहुत ही गजब की चीज थी। तो अब जो समस्या है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है अशोका सम्राट के समय से लेकर के अकबर से चलते हुए, और ये कह सकते हैं आपके 2013 तक भी थी। 2013 के बाद एक क्रांति आई जिसको मैं भ्रांति कहता हूं, तो अपने अपने देखने का तरीका है। तो क्या हुआ बेसिकली कि इसको देखने की जरूरत है हमें कि जब हम आधुनिक भारत के नेताओं को विजन देखते हैं, खासतौर पर नेहरू जी के समय से, गांधी जी के समय से, तो उनका मॉडल क्या था?
उन्होंने किसी भी मॉडल को, क्योंकि उस टाइम वेस्ट काफी डेवलप कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी और सारी चीजें थी, उन्होंने उसको आंख बंद करके नहीं मैं वो स्वीकार कर लिया कि चलिए जो है हम कर लेते हैं। नो, उन्होंने हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता है उसको एक विरासत के रूप में ढाला, विरासत के तौर पे कि हमारे यहाँ चला आ रहा है ये सब। एकता का जो निर्माण है वो भिन्नताओं को मिटाकर नहीं, जो आजकल आपने गजा में देखा होगा जिस बेरहमी से नरसंहार जिस तरीके के हुए, उनको मिटा करके नहीं, उन्होंने उनको सम्मान देकर करके दिखाया। और ये आप बात स्वीकार करेंगे कि 1947 में जिस क्राइसिस के दौर में हम खड़े थे, और जो लोग बैठे हैं मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के हैं, उस समय जो लोग विभाजन करा रहे थे, आज वो विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। कोई पूछ ले उनसे कि साहब आप तब उस समय क्या कर रहे थे, आजादी के आंदोलन में आप कहाँ थे, भगत सिंह की जो फांसी हो रही थी तब आप कहाँ थे? कोई जवाब नहीं। 39 मिनट 42 सेकंड का भाषण आज भी दे पा रहा, यहाँ से पहले वही सब करके आए मेरे आशुतोष जी। हमारे बीच में भी कंपटीशन था, पहले कर लो जल्दी चल रहा है, उस टाइप की चीज। लेकिन हकीकत क्या है साहब, ब्रिटिश राज ने भारत की बहुलता के लिए एक विरोधाभास पैदा किया और उन्होंने ठीक भी किया। वो यहाँ कोई राष्ट्र सेवा तो करने आए नहीं थे ना, राष्ट्र निर्माण करने आए थे। वो तो यहाँ पर शासन करने आए थे, औपनिवेशिक हम एक राज्य थे उनके, और उनको जो भी करना था उन्होंने किया। और सिंपल सी एक लाइन थी उनकी, डिवाइड एंड रूल। वो लाइन बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत तपस्या से गांधी जी ने, नेहरू जी ने एक दर्शन के साथ, एक विजन के साथ उसको बहुत दूर तक वो किया कि इसको किस तरीके से वो किया जाए। उससे पहले अगर आप देखें, आजादी से जस्ट पहले जो आजादी का आंदोलन चल रहा था, उसने अंग्रेजों की अगर जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति वो थी, नीति थी, उसको अगर हार्म किया तो सबसे पहले आजादी के आंदोलन ने किया। उसमें धर्म और ये सारी चीजें नहीं थी, केवल एक एकजुटता थी, समान विचार था, कॉमन कॉज था, फाइनल एम था, एग्रीड एम जिसको आप बोलते हैं। और उसके बाद जो कुछ स्थितियां हुई, यहां पर स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारा था वो इस देश के अंदर एक ऐसी भट्टी के तौर पे बना जिसने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा भी हुई, और वो तब कर मजबूत होकर सामने पूरे आजादी के आंदोलन के दौरान। कोई ये नहीं था, हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर मजहब के लोग मिलेंगे, ये गजब की चीज थी हमारे आंदोलन के दौरान। अब अगर आप बात करेंगे, इसके केंद्र में दो ही लोग थे अगर मुख्य रूप से सामने देखे, जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं बहुत ब्रीफ में। इसमें महात्मा गांधी जी थे, नेहरू थे। बाकी ऐसा नहीं कि मैं किसी को अंडरमाइन कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर इशू की बात मैं कर रहा हूं। गांधी अगर पश्चिम की डेफिनेशन देखिए, जो वेस्ट जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, तो वेस्ट उनको धर्मनिरपेक्ष नहीं मान सकता। वो उसको, गांधी जी को गहराई से अध्यात्म को जीने वाला व्यक्ति मानते हैं, गहराई से आध्यात्मिक थे वेस्ट की नजरों में गांधी जी। क्यों? क्योंकि वो उस दौर में जब देश का एक तरीके से बंटवारा होने की स्थिति थी, वो सारी चीजें थी, उस समय वो हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, मुस्लिम, सब उन सबको कहीं ना कहीं प्रेरणा देते थे अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने इंटरेक्शन से, अपने संवाद से। और उनके शब्दों में आप देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, एक वो दौर, और उसमें शब्द कहना, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सार है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम उस क्राइसिस के दौर, और वो सार धर्म का निषेध नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि सभी धर्मों का अंतिम सत्य और लक्ष्य एक ही है। ये गांधी जी की अप्रोच थी ओवरऑल, अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखेंगे। आज की तारीख में हालत यह है कि जो राम राज्य के माध्यम से गांधी जी ने आशा दी थी, सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने इस देश की जो बिखरी हुई जनता थी, डिवाइडेड रूल का शिकार थी, उसको एक शक्ति दी थी, ऐसा विश्वास दिया था जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं था। उसके बाद ऐसी आध्यात्मिकता दी, उससे दिशा बदली देश को, उसने दिशा को भरमाया नहीं, नई दिशा दी। ये गांधी जी का एक विजन था, और यही सच्चे मायनों में भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। उस दौर से लेकर के अगर आप आज तक चलेंगे तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मूल यहां से शुरू होता है। बहुत ब्रीफ के अंदर, जब आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत के लिए दृष्टिकोण ऐसी मजबूत नींव पर बना था जो पीढ़ियों तक, और हो सके तो एक दौर है, इसकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक संक्रमण काल हर राष्ट्र के, हर व्यक्ति के, हर संस्था के जीवन में आता है। तो जो नेहरू जी का ये था दृष्टिकोण, वो भारत का पीढ़ियों तक नहीं, सदियों तक मार्गदर्शन करने में सक्षम है। आज आप
किसी कारण से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, मीन पॉलिटिकल जो भी एजेंडा आपका उसके कारण वो कर रहे होंगे। नेहरू की जो सोच थी एक्चुअल में वो एक अद्भुत संगम थी। और संगम किस चीज का था कि पूर्व का हमारा दर्शन था, फिलॉसफी, और पश्चिम के प्रगतिशील विचार, उन दोनों को अगर आप मेल करते हैं तो दैट वाज नेहरू। और उन्होंने इसी को अपने शासन और जो विकास का जो मॉडल था उसका मुख्य जिसको आप कहते हैं मुख्य पृष्ठ, उसके तौर पे आपने सामने आते हुए देखा लगातार। इस दृष्टिकोण का बेसिकली केंद्र भी फिर वही बात पूर्ण कहती है, इस दृष्टिकोण का भी केंद्र वही था, धर्मनिरपेक्षता, जो गांधी जी ने कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें वो काम कर रहे थे। लेकिन नेहरू जी के लिए जो धर्मनिरपेक्षता थी उसको केवल राज्य और धर्म के सेपरेशन से अलग करना नहीं था, माफ कीजिएगा, यह भारत की विविधता को सक्रिय रूप से एज सच अपना लेना था। सब कुछ जैसा है एज ए पैकेज उसको अपना लिया, पूरी की पूरी विविधता को। यह वादा उन्होंने किया कि सभी धर्मों के साथ रहेंगे और राज्य सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष और सम्मानपूर्ण भाव रखेगा। इक्वल डिस्टेंस लेकिन इक्वल रेस्पेक्ट। गवर्नमेंट विल नॉट बिकम अ पार्टी। और इसको अगर मैं बहुत ब्रीफ में कहूं तो इसको एक छोटा सा एक वाक्य में कह सकते हैं कि धर्म की राजनीति हम नहीं करेंगे, राजनीति का धर्म रखेंगे। और आज 78 साल बाद आप वापस वही हो कि सर आप कर ही कुछ नहीं रहे, आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सूट करती है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो जो नेहरू जी का सिद्धांत था धर्मनिरपेक्षता, कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं था ये। इसको अगर आप देखेंगे तो ये तब की तात्कालिक अनिवार्यता थी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे हमारे पास। देश बिल्कुल शैशव काल में था, आजादी नई नई मिली थी, और किसी एक्स के साथ खड़े होना मतलब वाई को नाराज करना, और उसके बाद एक और वही विभाजन विभीषिका, जिसको हम जैसे लोग समझ सकते हैं, जो आजकल प्रचार कर रहे हैं उन्होंने कभी उसमें विभाजन विभीषिका में आउटी जरूर डाली थी। उसके मूल जनक भी वही थे, उसके मूल कारक भी वही थे। पश्चिम बंगाल में कौन किसके साथ सरकार चला रहा था वो आज भी बेचारे जवाब नहीं दे पाते सवाल, क्योंकि उनकी समस्या भी दूसरी है। देखिए फिर आप कहेंगे क्योंकि कल किसी एनजीओ का जो अनरजिस्टर्ड है, जब आज हम बात करें तो कल उसका 100वां स्थापना दिवस है। उस एनजीओ ने भारत को बड़ी अद्भुत चीजें दी। शुरुआत कहां से की थी कि कोई कांग्रेस मुक्त भारत, धीरे धीरे बढ़े, प्रगति हुई, उसको फिर ले आए विपक्ष मुक्त भारत, फिर नहीं बात बनी तो अब लाए हैं धीरे धीरे सवाल मुक्त भारत, और सवाल मुक्त से भी जब बात नहीं बन रही तो अब जवाबदेही मुक्त भारत, कि आपने जो करना करते रहिए, जो हमें जो करना है हम करते रहेंगे। पार्डन? जी बिल्कुल, शर्म मुक्त। धर्म और शर्म का तो फ्यूजन हो ही गया अपने आप सबने स्वीकार कर लिया, तो फिर इसको और प्रयोग करेंगे, मैं यूज करता हूं इसको बहुत। तो बेसिकली जो ये सारी चीज थी, नेहरू की दृष्टि जो थी उसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाने का काम किया। उनकी महानतम धरोहरों में से एक अगर हम मानेंगे तो द वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ द नेशन इज दिस, कि किसी तरफ ना इधर ना उधर, सीधा स्ट्रेट। और आज हमारी एकता और अखंडता उनके अडिग संपर्कों की, उनके योगदान की, उनके समर्पण की, सबकी ऋणी। नेहरू के लिए सांप्रदायिकता हो, बहुसंख्यावाद हो, इसके लिए कभी कोई जगह थी नहीं, आप सबको पता है। वे धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य ढांचा मानते थे, जहां हर समुदाय और हर व्यक्ति समान रूप से और शांति से सम्मान के साथ रह सके। विभाजन के बाद उन्होंने हिंदू या मुस्लिम किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा की कठोरतम शब्दों में निंदा की, हर बार विदाउट फेयर। किसी ने भी किया हो वो कभी इस पक्ष या उस पक्ष में खड़े नहीं हुए। अब आप सवाल करेंगे नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कभी ये नहीं था कि राज्य धर्म के विरोध में खड़ा हो। इसका अर्थ केवल ये था कि सभी धर्मों में समानता हो, शासन में धर्म का अलगाव, और ये कि राज्य किसी का पक्ष नहीं लेगा। सिंपल सी बात, सिंपल थ्योरी, और इसको वो प्रैक्टिस करते थे। ये एक अल्पसंख्यक तुष्टिकरण नहीं था, यह विश्वास, सुरक्षा और सभी के लिए अपनापन पैदा कर रहा था, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक तरह दूसरे के प्रति अपनत्व, एक पारस्परिक सम्मान। खासकर मुसलमानों के लिए जो विभाजन की त्रासदी से गहरे आहत थे, अंदर तक कहीं ना कहीं आहत थे वो। उनका विश्वास था कि केवल जब समुदाय स्वार्थ से रहना सीखेंगे तभी भारत अपनी कठिनाई से अर्जित इस आजादी को बचाने में सफल होगा, एकजुट रह सकेगा और एक आधुनिक मजबूत राष्ट्र बनकर विश्व में अपना उचित स्थान ले सकेगा। अब मैं थोड़ा सा समापन की तरफ आता हूं क्योंकि और बाकी सारी चीजें हैं। नेहरू जी ने संविधान सभा में एक चेतावनी दी थी, अगर आपको याद हो तो। उन्होंने कहा था, मैं कोट कर रहा हूं,
हमने देखा है कि राजनीति में सांप्रदायिकता कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। हमने खतरनाक परिणाम भुगते हैं। धर्म और राजनीति का मिलन अत्यंत खतरनाक है। यह बहुसंख्यक को भी हानि पहुंचाता है और अल्पसंख्यक को भी। इसका परिणाम अवैध और असामान्य ही होता है। अनकोट। अब अगर आप देखेंगे कि जो नेहरू की जो धर्मनिरपेक्षता थी, उसके 4 महान सिद्धांत थे। 4 नंबर 1, सभी धर्मों की समानता। राज्य की किसी भी धर्म के प्रति निष्पक्षता, सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता। मानसिक दृष्टिकोण और समग्र रूप में धर्मनिरपेक्षता। यह नहीं कि आपके लिए कुछ है, मेरे लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ है। और समुदायों के अंदर जो है सौहार्द और भ्रातृत्व, भाईचारा, ब्रदरहुड जिसको हम कह सकते हैं। और समान नागरिक संहिता जो कि समावेशी हो, वो नहीं जिस कंसेप्ट की आजकल हम रह करके धमकी सुनते हैं। धमकी है वो, क्योंकि समझ तो ना समान की है, ना नागरिक की, ना संहिता की है, पैदल सेना है। तो अपने ले रहे अपने हिसाब से चले चीजें। तो नेहरू का जो मॉडल था साहब, वो 3 उस पे स्तंभों पर खड़ा था। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नाउ आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात जो है, नेहरू जी मानते थे कि भारत का जो भविष्य है वो विज्ञान और तकनीक में है। उनके लिए विज्ञान केवल तकनीक नहीं था, बल्कि सोचने का एक तरीका था। तर्क, जिज्ञासा और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, वृहद दृष्टिकोण, ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। उन्होंने कहा था, कोट, विज्ञान समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था से अलग हो ही नहीं सकता। ये नेहरू जी का कोट था। उन्होंने वैज्ञानिकों को राष्ट्र निर्माण में साझेदार बनाया। आपको ध्यान होगा, बाबा साहब भटनागर, ये हमारे अग्रदूत थे, जिनके साथ मिलकर ऐसे संस्थान बनाए जिसके कारण उन्होंने बनाए थे। विश्वगुरु कोई और बन गया, और उसको बेचारे को स्पेलिंग भी नहीं पता, विश्वगुरु लगे हुए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगर आपका ध्यान हो तो उस समय हमारा क्या सिस्टम था, कितनी की इकोनॉमी थी, क्या हमारा जीडीपी था, कुछ जो सब आपको पता है। उसमें विज्ञान और तकनीक के लिए सर्वाधिक निवेश अगर पर कैपिटा करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ही वाज द मैन। वे मानते थे कि केवल 5% प्रतिभा का अगर सही उपयोग हो जाए तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक शक्ति बनाने में कोई रोक नहीं सकता। ये उनकी तब की राय थी। आज आप सॉफ्टवेयर से लेकर हर चीज में आप देखते हैं। तो गांधी और नेहरू में जहां भिन्नता थी, एक छोटे से पॉइंट पे थी, और उसको उन्होंने, क्योंकि गांधी जी तो जल्दी चले गए, लेकिन नेहरू जी ने अपने एक्शन से करके दिखाया कि नहीं, मेरी राय ठीक थी। और वो क्या थी? गांधी जी मशीनों और आधुनिक विज्ञान को लेकर शंकालु थे, जबकि नेहरू में उसी से समाज परिवर्तन की शक्ति कहीं ना कहीं उनको दिखती थी कि यहीं से आगे बढ़ पाएंगे। अगर वर्ल्ड को कंप्लीट करना है, मेन स्ट्रीम में आपको आना है, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। उसके लिए उन्होंने विज्ञान और योजना को केवल सिद्धांत नहीं माना, बल्कि क्रियाशील विज्ञान के तौर पर इस्टेब्लिश किया अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। 1958 में उन्होंने हमारी वैज्ञानिक नीति का प्रस्ताव रखा। विज्ञान में न केवल हमारी भौतिक दुनिया को बदला है उन्होंने कहा, बल्कि हमारे विचारों, मूल्यों और सभ्यता की ऊर्जा को भी बदला है। पहली बार आम आदमी वे चीजें पा सकता है जो कभी गिरे चुने लोगों तक ही सीमित थी। अनकोट। स्वतंत्रता के समय भारत के पास सीमित विश्वविद्यालय और शोध संस्थान थे, जैसे डॉक्टर मार्टिन ने कहा, और शोध संस्थान थे। लेकिन नेहरू की दृष्टि और नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा, इसरो और बड़े बड़े विज्ञान के क्षेत्रों में जो चीजें थी, आधारभूत उपलब्धियां हासिल की। IIT, IIM का कंसेप्ट तब था, आज वालों को कुछ और कंसेप्ट है, उस पर भी कभी मौका लगेगा बात करेंगे। अंततः नेहरू की जो दृष्टि थी, उसने एक आधुनिक भारत गढ़ने की नींव रखी, जो धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कपूर्ण शासन पर, जवाबदेह शासन पर आधारित था। और वे जानते थे कि राष्ट्र की एकता उसकी विविधता के सम्मान में ही नहीं। साथ ही उन्होंने विज्ञान और तकनीक को प्रगति के केंद्र में रखा, नित नए संस्थान बनाए, प्रतिभाओं को पोषित किया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया। आपको एक छोटी सी घटना याद दिला रहा हूँ। नाम का सम्मेलन हो रहा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि थे। दुबे साहब को पता होगा, ज्यादा विद्वान आदमी। उसमें जो इंडोनेशिया के जो प्रमुख थे, राष्ट्र प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि नमाज का समय हो गया। तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी आप आइए और आज आप, एक वो दौर था, आई सैल्यूट दैट जेंटलमैन, बोथ ऑफ देम। और एक आज क्या है, आज आप कपड़े देख के पहचान लेते हो, आज आपको कब्रिस्तान शमशान से बाहर नहीं दिखता। उस पद पर बैठ करके आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपको ऑपरेशन सिंदूर दिखाई देता है। ये यात्रा है साहब, ये 78 सालों की यात्रा है। और आखिर में मैं कहूंगा कि नेहरू जी की जो जिद थी
वो केवल जिसको हम कह रहे हैं ना कि नेहरू जी का मॉडल, नेहरू जी का ये सारा, उनकी जिद केवल मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, आधुनिकीकरण नहीं था, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाना, गरीबी मिटाना और भारत को विश्व में उचित स्थान दिलाना था। और जो देखा भी आपने 1900, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब हम बहुत ताकतवर थे। आज जब आपके पास तथाकथित सब कुछ, आप लगभग विश्व गुरु होके शाम को ही वापस लौटे, तो तब देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है। मुनीर शहबाज शरीफ 80 मिनट बैठते, आप वाले जो जयशंकर जी हैं वो क्या करके आए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर आज भारत की जो लोकतांत्रिक प्रगति है और सामाजिक एकता और विज्ञान की जो भी उपलब्धियां हैं, उनकी शुरुआत नेहरू जी की दूरदृष्टि की जीवंत मिसाल है। एंड आई सैल्यूट एंड बो बिफोर सच ए ग्रेट विजनरी। और आप स्वीकार करेंगे कि अगर नेहरू जी उस दौर में ना होते, जो विभाजन का जो कुछ हुआ था, जिसके बाद की जो परिस्थितियां थी, तो मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं कि अगर ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति नहीं होता तो भारत की आज ये वाला स्वरूप नहीं होता। ये कहीं उससे भी ज्यादा जो पाकिस्तान के साथ हुआ, उससे भी ज्यादा। ही इज द मैन हु मेड द इंडिया व्हाट वी आर टुडे। एंड देयर आर सर्टेन पीपल, मैं तो कई बार हंसता हूं, आनंद जी कहेंगे पर ये वहीं पे आ गया, मेरी मजबूरी है, एक लाइन कह के छुट्टी करता हूं। जो असलियत है, जब काम करे बिना किसी को गाली देके काम चल सकता है, तो काम करना क्यों चाहिए? आप हमें जबरदस्ती दिल्ली से उठा करके वाशिंगटन डीसी ले आए, बताओ। वो भाई एक ट्वीट करता है और विश्व गुरु हो जाता है। हम वाशिंगटन डीसी में आके इतने प्रबुद्धजनों में बैठ के विश्व गुरु नहीं बताइए। थैंक यू सो वेरी मच। कोई गलती हो तो माफ कीजिए। तो ये हेमंत जी का अपना ही एक अंदाज है, कटाक्ष और फैक्ट्स दोनों वो एक साथ रखते हैं और इसीलिए वो पॉपुलर भी है। आई एम श्योर आप सब लोगों को हेमंत जी को सुन के मजा भी आया होगा। मैं अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि अगर हिंदुस्तानी में ही अगर सवाल जवाब किए जाएं, क्योंकि हमारे एक मकसद ये भी है कि हम जो भी यहाँ पर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जो पैनल डिस्कशंस यहाँ पर हो रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जो भी लोग हम यहाँ पर आए हैं और जो उनका चैनल है वो सब हिंदी चैनल है, उनकी ऑडियंस भी हिंदी और हिंदुस्तानी जो है वो समझती है और देखती है। तो अगर ज्यादातर बात अंग्रेजी में होगी तो मुझे लगता है कि वो मकसद हमारा थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा कि यहाँ वॉशिंगटन डीसी में आकर जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका असर हो और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये हमारा मकसद है। और इसी को हम यहाँ कर चैलेंज भी एक तरह से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बहादुरी भरा ये स्टेप भी है जिस तरह की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हमें पता नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने जा रहे हैं, बट फिर भी हमने जो हिम्मत वहां दिखाते थे वो हिम्मत हम यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। और इकबाल बुलंद रहे, जिंदा है तो जिंदा दिखते रहे, यही हमारी कोशिश है। तो सवाल जवाब का सिलसिला मैं चाहूंगी कि शुरू किया जाए। जी, मेरा नाम रोहित है। Can you guys hear me? Yeah, we can. Little louder. इसके लिए अच्छा, okay, yeah. ओके। सो मेरा सवाल ये है कि नेहरू को आज के युवा से कैसे जोड़ा जाए। उनका जो बहुमुखी व्यक्तित्व था, कितने उदाहरण आपने दिए, हर क्षेत्र में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है देश के लिए, ना कुछ किया है बल्कि कितनी चीजों की नींव रखी है। और हम लोग नेहरू को, गांधी को बायोग्राफिकल तरीके से देखते हैं, पर उनको कंटेम्प्रेरी तरीके से कैसे दिखा जाए, खासकर युवा के लिए और बच्चों के लिए। सर, जब अभी हेमंत जी बात कर रहे थे तो मुझे अचानक लगा कि मैंने 1981 में आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन किया। हम लोगों का उसके बाद से लोग जगह जगह चले गए, लेकिन जब से व्हाट्सएप शुरू हुआ तब से हम लोगों का 2012 में एक ग्रुप बना व्हाट्सएप का। उसमें करीब हम लोगों का 240 लोगों का बैच था, करीब उसमें 180 लोगों ने ज्वाइन किया। आज के दिन में वो ग्रुप 3 भागों में बढ़ चुका है। ये सब लोग सो कॉल्ड नेहरू भारत के लोग हैं, क्योंकि सभी 60s में हमारे साथ के कंटेम्प्रेरी हैं, वो वाली सोच के लोग हैं, आईआईटी में पढ़े हैं। 1/3 ग्रुप जो है वो किसी भी, जो बोशरा जी जिस मॉडल को पेश कर रही थी उस मॉडल का 100% उदाहरण। दे आर रैबिड,
they believe and they have no shame in propagating those views. 1/3 जो है वो करीब बीच बीच का है, और करीब 1/4 होगा जो कि शायद नेहरू वाले भारत वाला अभी भी सिस्टम चल रहा है। सो जब हम लोग नेहरू को जोड़ने की बात कहते हैं लोगों के साथ, तो उनको उनकी जो सोच है उसके साथ जोड़ना होगा। एंड आई थिंक इट्स अ डीपर इशू, it is not a superficial issue. Why are people who so called नेहरू जी ने IIT बनाया, IIT में लोग पढ़े, उनका so called scientific temper होना चाहिए, लेकिन 1/3 लोग ऐसे हैं जिनको इस सबसे कोई मतलब नहीं। They are totally aligned with the right agenda. So ये मुझे लगता है कि ज्यादा डीप रूटेड है। नेहरू को अगर कंटेम्प्रेरी लोगों के लिए बनाना है तो हम लोगों को नेहरू की बात को एज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स पेश करना होगा। नेहरू वाज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. He was visionary not only because he had a vision, he had a strategy to convert that vision into reality. And I think his path is the path, and that path has shown results. इंडिया में जो कुछ भी आज के दिन में हम लोग विश्वगुरु बन रहे हैं, उसकी फाउंडेशन वही है, उसी फाउंडेशन से हम लोग बने हैं। लेकिन I think narrative, I think my thinking is that somehow we have missed out on the narrative. वो story line नहीं है, and we have allowed space to others to have their own narrative and make that narrative the dominant narrative. और उसी में बात जो थी, जो हेमंत जी ने कही कि हम लोग हर आदमी से झगड़ा मोल लेते हैं। कोई आदमी जाकर के अनुराग ठाकुर ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, हम लोग रिएक्ट करते हैं। I think it may be a good strategy to just ignore it and keep on your agenda. They decide the agenda. उन्होंने एक दिन कुछ बोल दिया, अब 24 घंटे तक लोग उसकी बात करने लगे। अगले दिन कुछ और बोल दिया, फिर 24 घंटे। लेकिन अपनी बात क्या कहनी है, हमारा एजेंडा क्या है, हमारा नैरेटिव क्या है, वो शायद नहीं बात में आता है। सो मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सोचना होगा। यहाँ सभी लोग मीडिया के लोग हैं, तो आप लोगों को सोचना होगा कि हमारी लड़ाई कहाँ है। उनसे रोजमर्रा की मुझे लगता है हेमंत जी और शाहजादा जी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। What I wanted कि okay. Sir, topic is even hotter. Give us 30 seconds. Come on, be. सर, आपने एक सवाल पूछा साहब, ये मेरा आपसे एक काउंटर सवाल है। ये अनुराग ठाकुर कौन है, क्या बेचता है, इनको किसने बनाया? इनको हमने बनाया। उसने बकवास की, मैंने डिबेट करी, उसकी 20 मूर्खों ने सुनी, मैंने 50,000 मूर्खों को सुना दी। उससे भी बड़े मूर्ख पैदा कर दी, प्रचंड मूर्ख, जघन्य मूर्ख। आप शब्दों पे जाइएगा, ये मूर्खता का अमृतकाल है और अनंत बनाने की कोशिश है। मूर्खता का अमृतकाल है ये, और यहाँ महानता आप कैसे अर्जित करते हैं? मैं आनंद वर्धन जी का कभी मुकाबला नहीं कर सकता, सही है बात, लेकिन मैं एक काम तो कर सकता हूँ, गालियां दे ही सकता हूँ। तो मेरा सुबह खाली पेट उठते ही भूखे प्यासे एक ही काम है कि इनको गालियां देने जुट जाऊं, और मूर्खों की कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे पास चल आएंगे, क्योंकि ये बताएंगे गांधी की बात, नेहरू की बात, मैं करूंगा देश के गद्दारों को। तो ये हमारे डीएनए में आ गया भाई, और इसको एड्रेस करने का तरीका साधारण है। प्रोफेसर शिवेंदु जी ने बहुत ही सही बात कही कि आईआईटियंस जैसे लोग अलग अलग धाराओं में बट गए हैं, और एक धारा आज का जो हमारा दौर चल रहा है उसके साथ बह रही है, एक अभी भी नेहरूवियन सोच के साथ खड़ी हुई है। तो केवल मेरा इतना सा कहना है कि जब विश्व विज्ञान कांग्रेस में हमारे पीएम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी जो थी वो हमारे देश में उस समय से प्रचलित है, जब गणेश जी को के सिर पर हाथी का सिर
ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। या हम कहते हैं कि बुलबुल पे सवार होकर सावरकर जी जेल से निकल के आते थे और घूमते थे, दौरा करते थे। तो ऐसे समय में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम वैज्ञानिक चेतना को फिर से किस तरीके से पुनर्जीवित कर पाएं, या नेहरू को किस तरीके से आज हम रेलेवेंट कर पाएंगे युवाओं के लिए। ये एक बड़ी सोच का विषय है। और हमको तो इस बात पे भी शर्म आती है कि विश्व के वैज्ञानिक, दुनिया के वैज्ञानिक हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, और तब शायद वो और भी ज्यादा हंसते होंगे जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। स्वघोषित विश्व गुरु हैं। Any और other मैं एक चीज और questions? कहूंगा, एक वाक्य सिर्फ केवल, अगर आप इजाजत दें, एक वाक्य कि ये जितने जो प्रचंड आप जिनकी बात कर रहे हो ना, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता उनका, उनके ऊपर गुस्सा मत किया करें, उन पर रहम करके उनको अपने हाल पर छोड़ दे, वो खत्म हो जाएंगे। उनके ऊपर लेट्स नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम, जस्ट सिंपली इग्नोर देम, लेट देम बी ऑफ एंड हिट देम वेयर इट हर्ट्स वेरी हार्ड। लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है इसको लेकर कि यहाँ पर सब लोग ये कह रहे हैं कि जी आपका मैं क्वेश्चन जी प्लीज मैं बस एक काउंटर पे आप क्वेश्चन प्लीज कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं हमें उस पर रिएक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल फिर ये है कि जो बातें वो कह रहे हैं उन मिथ्स को फिर हम कैसे डिबंक करेंगे, हम उन बातों को कैसे फिर उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो वो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, और क्या ऐसा करके हम उन प्रॉब्लम को क्या हम सॉल्व कर देंगे कि ठीक है उन्होंने कहा, आज एक ने कहा, कल दूसरे ने, कल तीसरे ने कहा, एंड वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिएक्शंस, डज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम? किससे सवाल है? किसी से भी जी। So I think इस room में there are good number of people who teach. So classroom में you don't spend your 60 minutes on telling somebody who gave a wrong answer. You just say that it's wrong and then move on. हमारे यहाँ एक जो जैसे कि कहा कि डिबेट होने लगी, अब उन्होंने ये कहा तो आपने 4 लोगों को बुलाया, उन लोगों ने डिबेट किया पूरे 90 मिनट्स, वो कितना ही लार्ज हो गया। अगर उसको yes you should definitely counter it, but counter it with the purpose that you have something else to say other than just countering. So I think one of the things that happens that we just counter and say that countering itself is a narrative, is a new vision. That is probably not, and that gets more and more amplified. मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ बुशरा की, काउंटर करना चाहिए उनको, लेकिन प्रोपोर्शनेट। किसी ने एब्सर्ड बात कह दी, आप उस पर कितनी देर तक उसको काउंटर करेंगे? जो गलत है वो गलत है, गलत कहिए, बताइए क्यों गलत है और आगे बढ़िए, सही क्या है ये बताइए। So I think Professor, can I just interrupt? You were just speaking. Now, that's a very important question which he had raised. Yeah. But at the school level, if the children, you know, the kind of conversation the children have, and I'm only relating with what my kids do and what is happening exactly in their classrooms. My class 10 son, he's in class 10, he comes and asks me one day, and this is just about 15 days ago, Mom, was Mahatma Gandhi a Casanova? I said, who told you this? Was a Casanova. So I said, who told you this? So, and this is the real conversation happening in the classroom, which is why I was a little worried. We were talking in the morning that we need to bust these myths when it comes to Gandhi, comes to Nehru. Nehru spent a lot of time with Edwina. Why are children being made to study this? This is a very dangerous sign, and this is happening in schools. So which means it's happening at a very fundamental level. Okay, your classrooms are mature, you have very mature students who can handle all this. But 13-year-old, 14-year-old children, if they are taught this, I mean, and then I have to remind my son that did you know what Mahatma Gandhi is known for? Yes, Mom, he is known as a father of the nation. But on the WhatsApp and the way, you know, my classmates talk about, so I said, how do they get the information? So this is what is being discussed at the family levels. At the family level, this is being discussed. Oh, forget about Gandhi. The children are not taught this. they are not taught this. Taught or disseminated through WhatsApp. एक तो जो नीलू कह रहे हैं, स्कूल में चर्चा हो रही है बच्चों की, उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जा रहा है, जो शैलवाला ने उदाहरण दिया
कि सावरकर रात को बुलबुल पर बैठकर निकलते थे हिंदुस्तान का हाल जानने के लिए। ये सर मिथ नहीं है, टेक्स्ट बुक में शामिल है। जब बीजेपी की सरकार थी उसने टेक्स्ट बुक में इस पाठ को शामिल किया है। एक लेवल ये है। दूसरा वो है जहां देश का प्राइम मिनिस्टर तीनों सेनाओं के जनरल्स को ये ज्ञान बांट रहा है कि बादलों की ओर से रडार को धोखा दिया जा सकता है, या वर्ल्ड साइंस कांग्रेस, विश्व विज्ञान कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हाथी के सिर को काट के गणेश जी के सिर पर लगा दिया था, इतनी उन्नत थी हमारी प्लास्टिक सर्जरी। ये जो दो लेवल है, इसका काउंटर कब तक और क्यों नहीं करना चाहिए सर? आप बताइए। अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, वो फौजी जनरल तो सुन के चले आए, वो नहीं कह पाए। मेरा निवेदन ये है कि जो आपने बताया कि कुछ कहानियां हमें बतानी पड़ेंगी, एक कहानी छोटी सी मैं बताऊंगा कुछ ही पंक्तियों में। ये कहानीकार ने नहीं, प्रोफेसर रजनी कोठारी ने हम लोगों को सुनाई थी। उनका एक आर्टिकल छपा था 1986 में। 1984 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें रह गई थी पार्लियामेंट। वो अपनी पॉलिटिकल जिंदगी की सबसे बिल्कुल नीचे सतह पे थे। कोई उनका पूछताछ करने वाला नहीं था। बुरी उनकी हालत थी, रोते थे बैठ के अपने अपने घरों में। रजनी कोठारी ने 1986 में एक लेख लिखा था जो लोकायन में छपा था, इसलिए बहुत कम लोग उसको पढ़ पाए। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में केवल कम्युनल, अपने आप को हिंदू कम्युनल कहने वाली पार्टियां, बल्कि अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां और सेकुलर कहने वाले जो ग्रुप हैं, वो किस किस्म की पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। ये है उसमें पूरे लेख में। जो सड़कों पे जगराते हो रहे हैं या और इस बड़ी बड़ी जुलूस निकल रहे हैं। जो गणेश उत्सव वहां मनाया जाता था महाराष्ट्र में, उसको एक राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से जो पूरे हिंदुस्तान में जो एक पॉपुलर हिंदू रिलीजियसिटी है, हिंदू धार्मिकता है, उसका जितना बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो रहा है, और उसमें केवल हिंदूवादी नहीं भाग ले रहे हैं उसके अंदर, उसके लिए संसाधन मुहैया कराना, उसके लिए लीडरशिप मुहैया कराना, और ये जो कांवड़ यात्रा का रूप बदल रहा है, मतलब ये सारी चीजें जो है ना, ये 1986 में हो रही थी, 80 के दशक के मध्य में हो रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वो सत्ता में आएगी। 2 सीटें थी उसकी पार्लियामेंट में, उसके बड़े से बड़े सारे नेता हार गए थे। तो मेरा निवेदन यह है कि थोड़ा सा हम लोग इस समस्या को जटिल बनाएं। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मतलब ये इतनी आसानी से जितने हम लोग मतलब थोड़ा चुटकुलेबाजी कम करें और उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा जटिल बनाएं और समझने की कोशिश करें कि भाजपा के उभार के बहुत पहले से समस्या धीरे धीरे जमीन इनकी पक रही थी, वो इनके हाथ लग गई जमीन, वो बात दूसरी है मतलब, लेकिन मसला कुछ और है। मेरा निवेदन बस ये है। जी प्लीज। अच्छा लास्ट ईयर ओके, हाँ प्लीज। आई नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वी कैन गो ऑन एंड ऑन, बट वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। I don't have too long a point to make, but Gandhi and Nehru, we are talking about them. They were the products and leaders of a wide mass movement. There is no mass movement in India now on those ideologies. There's just a bunch of us. Even the Congress party does not talk about what Gandhi did and what Nehru did, except for putting their posters and pictures. वही नहीं बात करते गांधी नेहरू ने क्या किया, क्योंकि अगर वो बोलेंगे क्या किया गांधी नेहरू ने, तो उनको बताना पड़ेगा भाई तुम क्या कर रहे हो जब गांधी नेहरू ने ये किया। वो तो इंदिरा गांधी ने ही बात करना बंद कर दिया था अपने बाप के बारे में, नेहरू के बारे में और गांधी के बारे में। क्योंकि अगर इंदिरा गांधी बात, हमारे एक वो दिनेश चंद्र वर्मा जी थे, हमारे अभय जानते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, तो वो बोले लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर पढ़ पढ़ के हमारा डेमोक्रेटिक टेम्पर हो गया, और जिसको लेटर लिखा था उसने इमरजेंसी लगा दी। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? वो तो दैट मूवमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, that ideology, that thinking, that understanding. That is why a whole swath of IITians and IIM people, they have all become hardcore Sanghis today. जी जी बस मुझे लगता है कि हम इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू प्रोफेसर शिवेंदु, हेमंत जी एंड शैलबाला जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।